Hello students, today we are here with our next lecture of human reproduction, and in this video we will discuss about the process of parturition. Clear? We have discussed the complete development of embryo, placenta as well as the extra embryonic membranes and all the process of organogenesis. Now come to the point, that is parturition. Parturition is the process of, it is defined as the process of expelling out of expulsion of fully developed fetus from mother's uterus after completion of gestation period. This process is called as parturition. In human beings, the gestation period is of 9 months, or we can say that it is about 280 days. This is the gestation period in case of human beings. Here the process of parturition is a neuroendocrine mechanism. It is a neuroendocrine mechanism in which our nervous system as well as endocrine system is going to take part. Clear? हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर पार्टुरेशन की प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसमें जो स्टेप्स होने वाली हैं, द डिफरेंट स्टेप्स विच आर गोइंग टू टेक्स प्लेस, these steps, firstly the fetal ejection factor is released from the body of fetus and placenta. The first step which is going to take place, that is fetal ejection factor is released, or release of fetal ejection factor from the body of fetus and placenta. This factor creates, or it produces, the mild uterine contraction in the mother's body. So it will create, the release of fetal ejection factor is create mild uterine contractions in the body of the mother. So it will create the mild uterine contraction where? In the body of mother. After these contractions, these contractions will stimulate the pituitary gland of mother for the secretion of oxytocin hormone. These mild uterine contractions stimulates the mother pituitary gland for the secretion of oxytocin. This oxytocin hormone is responsible for increasing the contraction in the uterus. After the secretion of oxytocin, the uterine contractions will increase. The contractions which are mild before the secretion of oxytocin, and after the secretion of oxytocin, these contractions
in uterus increases, and these increased contractions are called as labor pain. This is the labor pain due to which the fetus is expelled out from the body of mother. Clear? The first step में क्या होगा? Release of fetal ejection factor from fetus body and placenta. fetus की body और placenta fetal ejection factor release करती है. ये fetal ejection factor मदर के यूटेरस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट कर देते हैं. ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड, द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज गोइंग टू स्टिमुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. और जैसे ही मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, ये स्टिमुलेट होकर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है. एंड दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन will increases the contraction in the uterus. This will call the labor pain. After this, the cervix of mother is dilated. After this, the next step is cervix dilated with the help of relaxin hormone. With the help of relaxin hormone, the cervix starts dilating and the expulsion of fetus is going to take place. It means expulsion means the birth of child has been taken place. ठीक है? इसके बाद क्या होगा? expulsion of fetus. जैसे ही फीटस का एक्सपल्शन होता है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स नेक्स्ट प्रोसेस इज गोइंग टू टेक्स प्लेस विच इज कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ. एंड इन दिस प्रोसेस द प्लेसेंटा हैज बीन लॉस्ट. In case of human beings, both the part of placenta, that is fetal part and maternal part, is going to be lost after the birth of a child or after the expulsion of the fully developed fetus. That's why the human placenta is deciduate, because maternal part as well as the fetal part of the placenta is coming out of the body from the time of childbirth. Clear? So after birth is going to take place. These are the important steps through which the process of parturition is taking place in the body of human females. Now this complete process is basically divided into 3 phases. The first phase is called as dilation phase, and this dilation phase results in the dilation of cervix. So here the dilation of cervix is going to take place, and it is stimulated by a hormone that is called as relaxin. This relaxin hormone plays an important role in the process of dilation of cervix. The second important phase, that is called as expulsion phase. This is a dilation phase. Second one is expulsion phase, and in this phase the fully developed fetus is expelled out of the body by the activity of oxytocin enzyme. Here the oxytocin enzyme is secreted, and this enzyme helps in the expulsion of the fetus from mother's body, because it creates or it increases the uterine contractions. ठीक है? ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? फीमेल बॉडी में लेबर पेन को इंक्रीज करेगा, और जो कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस में है, जैसे जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो फीटस है इट विल स्टार्ट एक्सपेलिंग आउट ऑफ द बॉडी. क्लियर? तो ये प्रोसेस हमारे पास होती है एक्सपल्शन फेज में. इसके साथ साथ ना फीमेल बॉडी में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस. सो द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द फीमेल
बॉडी, और जो फीमेल बॉडी में एमनियन मेम्ब्रेन है ना, हमने 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था. सो द एमनियन मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी रप्चर. एमनियन गेट्स ruptured and the amniotic fluid comes out. Amniotic fluid comes out. This process also takes place at the time of expulsion phase. Nextly, expulsion phase में क्या होगा, फीटस हमारे पास मदर बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो चुका है. नाउ दिस फीटस गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द मदर बॉडी एंड इट हैज लॉस्ट द कनेक्शन विद प्लेसेंटा. क्लियर, प्लेसेंटा से इसका कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है. अब इसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है, ये जो बेबी अभी न्यूली बॉर्न बेबी जो डेवलप हुआ है, एक्सपेल आउट हुआ है फीमेल बॉडी से, ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करना स्टार्ट करता है. दैट्स व्हाई देयर लंग्स स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग. सो द नेक्स्ट चेंज व्हिच इज टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द फीटस, लंग्स स्टार्ट एक्सपेंड. तो लंग्स क्या होंगे, इसके एक्सपैंड होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो इसके पास गैसियस एक्सचेंज कहाँ से हो रहा था, मदर बॉडी के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू. प्लेसेंटा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह इसके अंदर काम कर रहा था. अभी ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ गया है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने के बाद इसे अपने खुद के ऑर्गन से रेस्पायर करना है. तो यहाँ पर इसके लंग्स एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड द फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी विल बी सीन ना. जो बर्थ के बाद बेबी का जो फर्स्ट क्राई हम सुनते हैं, दैट फर्स्ट क्राई इज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ दीज लंग्स. क्लियर, इसके लंग्स एक्सपैंड होंगे. इसके अलावा हमारे पास एक और चीज हमें फीटस की बॉडी में या जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है उसकी बॉडी में देखने को मिलती है, दैट इज लॉस्ट ऑफ फोरामेन ओवेलिस. क्लियर, सो द फोरामेन ओवेलिस जो है यहाँ पर, वो भी यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है. सो दैट इज क्लोज हो जाता है. नेक्स्ट चेंज इज फोरामेन ओवेलिस ना. ये हमारे हार्ट के ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट एक सेप्टम है, दैट इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है ना. दोनों जो ऑरिकल्स है हार्ट के, उनके बीच में प्रेजेंट जो सेप्टम है, वहां पर एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवेलिस. एंड दिस फोरामेन ओवेलिस क्लोजेस. इफ इट इज नॉट क्लोजेस देन वी कैन से दैट, आपने सुना होगा हार्ट में छेद है, ऐसा हम बोलते हैं. तो वो जो डिजीज है वो कब होगी, जब ये फोरामेन ओवेलिस जो है वो क्लोज नहीं होता है. ठीक है, इट इज एन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और ये बर्थ के बाद क्लोज हो जाता है, क्योंकि पहले इसमें से मदर की बॉडी से कनेक्टेड होता है, तो वहां पर इसका कनेक्शन मदर की बॉडी से रहता है और आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है. नेक्स्ट चेंज जो होगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड हमारे पास है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी आफ्टर बर्थ, umbilical cord gets cut ना. umbilical cord को काट दिया जाता है और मदर बॉडी से इसका कनेक्शन कट जाता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन फेज ना. ये सारी प्रोसेस हमारे पास कहाँ होने वाली है, एक्सपल्शन फेज के दौरान, जहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा यूट्रस के अंदर. देन एमनियोटिक जो हमारे पास कैविटी है या जो एमनियन मेम्ब्रेन है, ये रप्चर होगी और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा. लंग्स एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि फीटस जो है वो अपनी बॉडी से रेस्पायर करना स्टार्ट कर देगा. फोरामेन ओवेलिस जो है ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा. क्लियर, ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे एक्सपल्शन फेज के टाइम. एंड द लास्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ. और आफ्टर बर्थ में क्या होने वाला है, इन द फेज ऑफ आफ्टर बर्थ placenta has been lost. So in the third phase, that is called as after birth, इस फेज में हमारे पास होने वाला है loss of placenta. Clear? So this is the process of parturition. यहाँ पर ये एक नॉर्मल पार्ट्यूरेशन की प्रोसेस है. इफ द सिजेरियन सेक्शन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस,
है ना। यदि मदर बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और फीटस जो है वो मदर बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, तो उस केस में सिजेरियन परफॉर्म करते हैं और उसको हम बोलते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फीटस, दैट इज सिजेरियन। सिजेरियन मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फीटस ना, एक सर्जरी के थ्रू फीटस को फीमेल बॉडी से बाहर निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिजेरियन सेक्शन ना, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन करके बॉडी से बाहर या ऑपरेशन से फीटस का बर्थ हुआ है तो उसे हम कहते हैं सिजेरियन सेक्शन। सी क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ पार्टुरेशन। और यहाँ पर हमने चाइल्ड का पूरा फुल डेवलपमेंट और उसका बर्थ सारी प्रोसेस कंप्लीट कर रही है। Now in the next section or the next video we will discuss about the process of twinning, how the twins are formed. Thank you very much.